Good afternoon and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So guys, in this class we are going to deal with one of the most important questions for UPSC Civil Services exam preparation. How to make notes for overall UPSC preparation. Prelims, mains, current affairs, static portion, NCERTs को notes में कैसे साथ लेके चलें. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज जो है 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद में समझ आती है और जिनको ये पूरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने के बाद भी कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ में आती. तो मैं थोड़ा एक अलग अंदाज में आज इस क्वेश्चन से डील करने जा रहा हूं. दिस क्लास इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अदर कन्वेंशनल क्लासेस. दिस क्लास इज गोइंग टू बी एंटायरली डिफरेंट. जस्ट लेट मी चेक इफ द स्ट्रीमिंग इज वर्किंग फाइन एट योर एंड. So these things are going to be there. Just 1 minute. काफी बार आप लोग काफी टाइम से क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि सर ये कैसे करें. So here comes the answer. देर आए दुरुस्त आए टाइप. So you'll see की एफर्ट जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें. I'll give you examples from the science and tech point of view. I'll give you examples from polity, economy, geography, history. सभी चीजों के examples इसमें रहेंगे कि कैसे हमें ये चीजें अटेम्प्ट करनी है एग्जामिनेशन सिचुएशन में. सो जस्ट 1 मिनट. योर नोट्स हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग एज यू आर गोइंग टू डू इन द मेंस examination hall. If you are not preparing your notes in a manner which is required in the examination hall, you are going to fail. Bluntly speaking, you are going to fail. If you are preparing your notes in a manner that it aids your answer writing in the mains, then only you'd be able to सेल थ्रू. अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए आई टुक माई ओन टाइम. आई एम लेट हियर कि ये लेक्चर जो है 1 महीना पहले होना चाहिए था. बट यू गाइज वर नॉट मैच्योर इनफ. वी आर एबल टू अप्रिशिएट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन वी हैव फेस्ड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. राइट, समझ में आ रही होगी बात. तो जब तक तुम लोगों ने प्रॉब्लम ही फेस नहीं करी थी तब तक तुम्हें सॉल्यूशन देता तो तुम्हें समझ नहीं आता. एज दे से, डू नॉट ऑफर पर्ल्स टू स्वेज. कितनों को समझ आया ये? मोतियों की कदर उनको होती है. सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. जस्ट 1 मिनट. द स्ट्रीमिंग इज गोइंग फाइन. मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह ओपन करके रखे थे तुम्हारे लिए. So is the streaming fine for all of you? Just say yes on the Telegram. I'm not having access to the classes today. Streaming एक बार चेक कर लेना. एक बार स्ट्रीमिंग सही चल रही है. किसी और आईडी का पासवर्ड मेरे को दे दो. ठीक है. सो गाइज देखो, नोट्स मेकिंग में 2-3 स्ट्रैटेजीज लगाई जाती हैं. फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, आर यू गोइंग टू मेक नोट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन नोट्स थोड़े से टीडियस हो जाते हैं. डेली उनको अपडेट करना, 10-15 दिन करोगे फिर नहीं करोगे. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू see through, they carry through their offline notes making process if they are able to be successful. Online में थोड़ा advantage है कि notes जल्दी बन जाते हैं. Both the things have their own pros and cons. Offline के pros ये है, writing speed हो जाती है, answer writing practice etc. के लिए. Online में advantage ये है, you are able to read more and you are not writing a book or you are not in the process of reinventing the wheel. Right? So for next 4-5 minutes, please put your queries here. Okay, it's working fine. All right. So guys, मैं थोड़ा सा
अनकन्वेंशनल वे में लेके चल रहा हूं इसको. Humans tend to lose almost 40% of their new information within first 24 hours of first reading or hearing it. If we take notes effectively, however, we can retain and retrieve almost 100% of the information we receive. So point is, how much to write? There is so much to read. We are not able to read. We are not able to complete the reading. Writing तो छोड़ ही दो, है ना? Given the voluminous nature of the UPSC exam syllabus, it is not possible for the people to read and jot down everything. So what is the way forward? मैं हमेशा ये कहता हूँ, anything, read anything 3 times and then make notes out of it. This is for my students, it's quite a known thing. मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या मेरे नोट्स भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करना है that you are able to make a chart. लक्ष्मीकांत या जतिन वर्मा के नोट्स हैं पार्लियामेंट एज अ टॉपिक, ठीक है, पार्लियामेंट एज अ टॉपिक. मैं कुछ और टेबल जिसमें ऐड कर रहा हूं, सोर्स क्या है, ठीक है. हो सकता है आपने पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत से पढ़ा है या जेवी नोट से पढ़ा है या आपकी बुक से पढ़ा है. रीडिंग 1, रीडिंग 2, ठीक है, एंड देन रीडिंग 3. फिर उसके बाद एक और कॉलम बना लेते हैं नोट्स. R1 कौन सी डेट को हुई. एज वी जस्ट सॉ कि रीडिंग 1 के रीडिंग 2 और रीडिंग 1 के बीच में गैप 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. रीडिंग 1 हैपेंड ऑन 4th of November, दैट इज टुडे. रीडिंग 2 शुड हैपन विद इन फर्स्ट 18-24 आवर्स. मेरा कहना ये रहेगा द सेम डे रीडिंग 2 शुड हैपन, सेम डे. हुई या नहीं हुई, ठीक है. जो पढ़ रहे हो उसको उसी दिन रिवाइज जरूर करो इन ऑर्डर टू डिराइव मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दैट थिंग. क्लियर? In order to derive maximum value out of that particular area. So this is there. Now if you are not revising those things in a particular day, इसमें स्टूडियो जतिन में ये jatinverma.org में अपनी आईडी से लॉगिन करके देते हो, कमेंट्स देखते रहूंगा स्टूडेंट्स. So if you are not making the notes of the same thing which you have read in on that day, the same day you are losing. वो फिर as bad हो जाएगा as you haven't read. 2-3 दिन के बाद उठाओगे. नई चीजें पढ़ने के चक्कर में मैं ज्योग्राफी उठा लेता हूं, मैं पॉलिटी उठा लेता हूं, मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ता रहूंगा, मैं जतिन को सुनता रहूंगा या मैं किसी और यूट्यूबर को देख लूंगा. ये मत करना. तैयारी है, यू रिक्वायर जस्ट 50 बुक्स, ठीक है. 50 से 60 बुक्स में इसका काम हो जाता है, प्लस करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हो. 50 बुक्स क्या है? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी की सविंदर सिंह, एनसीईआरटी बुक्स को मिला के मैं बोल रहा हूं 60 बुक्स. अब तुम लोग एनसीईआरटी का वो जो बेचने वाले 2,500-3 हजार का पार्सल बेचते हैं वो अलग बात है, वो सब मत करो, ठीक है. तो एनसीईआरटी अभी तो हम लोग कोर्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन रिलाई ऑन द बुक्स, 20 बुक्स दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू प्लस द क्लासेस. मेक नोट्स आउट ऑफ द क्लासेस इफेक्टिवली. पार्लियामेंट टॉपिक आपने पढ़ा, उसके 2-3-4 दिन के अंदर रीडिंग 3 हो जानी चाहिए. अगर कोई बहुत ही टिपिकल चैप्टर है तो रीडिंग 4 भी कर लो. उसके बाद यू शुड मेक नोट्स. आफ्टर दैट ओनली यू शुड मेक नोट्स. इफ यू वुड मेक नोट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, you would make notes in a very flowery language, in a very stylish manner, using 4 different colored pens and all. पहले दिन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. दूसरे दिन से फिर वो क्या होगा, तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे लगेगा इट्स अ वेरी टीडियस जॉब. लेट मी जस्ट नॉट मेक द नोट्स, आई विल रीड दिस बुक 10 टाइम्स. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. मैं इस बुक को 50 बार पढ़ लूंगा, इतने में तो मेरे जो है दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी, तो मैं इसको पढ़ लेता हूं. क्यों ना मैं लक्ष्मीकांत के साथ सुभाष कश्यप भी पढ़ लूं, क्यों ना मैं जतिन वर्मा के नोट्स के साथ कुछ और भी पढ़ लूं, मेरा काम हो जाएगा. तो मैं बार बार अलग अलग चीजों से पढ़ना अवॉइड करना, ये टेंडेंसी रहती है, बिकॉज वी फाइंड द वेज टू एस्केप हार्ड वर्क, ठीक है. तो ये चीज आपको नहीं करनी. अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नोट्स में लिखें क्या, कितना लिखें, कैसे लिखें, ऑर्गेनाइज कैसे करें, राइट. हाउ मच टू राइट, वेयर टू राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन, फ्रॉम विच सोर्स टू राइट, दीज थिंग्स आर देयर. थैंक यू. तो ये सारी चीजें हैं, है ना. अब आपको ये देखना है कि जस्ट 1 मिनट. यस,
तो हम क्या करते हैं, एक बुक से दूसरी पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारी ये टेंडेंसी होती है, ये तो मैंने पढ़ लिया, मेरे साथ ये होता था, ये तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं कुछ और नया पढ़ता हूं. आई हैव रेड सो मेनी बुक्स इन द प्रोसेस, बट प्रॉब्लम क्या होती है, मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम विंडो होती है, उस टाइम में फिर चीजों को कंसोलिडेट करने में मुश्किल आती है. अगर एक बुक को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो वो ज्यादा एडवांटेजियस होता है, बिकॉज यू आर एबल टू रिटेन, दैट बिकम्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट इज योर्स नाउ. अनटिल एंड अनलेस यू अराइव एट दैट स्टेज, don't think of writing the examination. Now when I say this, please don't try to find an alibi or excuse out of it. हाँ, जतिन ने कहा था जब तक याद नहीं हो जाए तब तक प्रीलिम्स नहीं देना. मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेज पे पहुंचना है प्रीलिम्स से पहले, गलत वे में मत इंटरप्रेट करना. कैसे करोगे, बार बार उस चीज को उसी वे में, उसी चीज में देखो. आई लाइक टू टेक यू टू दी स्कूल डेज. एक ही एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक होती थी, उसी बुक को बार बार पढ़ते थे तो याद हो जाते थे. 90, 92, 93 मार्क्स तभी आते थे, क्योंकि बाहर से कुछ आना नहीं. अब यहां पे यूपीएससी में सिलेबस अनडिफाइंड है, हम क्या करते हैं, ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं. पढ़ने के नंबर कोई नहीं देगा, जो लिख के आओगे नंबर तो उसी के मिलेंगे. अब कितना लिख के आओगे, सवाल ये है. और जैसा मैंने कहा कि मोस्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट टू राइट इन नोट्स मेकिंग, हाउ मच टू राइट. सो लेट मी टेक यू टू दैट. नोट्स मेकिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द यूपीएससी प्रिपरेशन. वन कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्लियर, ये सारा बोल बच्चन यहाँ पे, ठीक है. अब मैं यहां पे आ रहा हूं, टॉपिक कवर्ड इन दी लेक्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर हमने कवर करा था, सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. सो यू वुड बी गिवन दिस डेटा, हाईलाइटेड है, तो आप यहां पे नोट्स में व्हाई इन न्यूज, ओवरव्यू, इंडियन एग्रीकल्चर. फॉर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लाइक दिस, थीम क्या है, एग्रीकल्चर. फिर हम थीम क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी. थीम ट्रांसपेरेंसी किस में आएगा, गवर्नेंस में. फिर थीम ट्रांसपेरेंसी में एक और सब थीम है, आरटीआई. अब इनके नोट्स कैसे बनाने हैं, लेट मी टेक यू टू वेबसाइट नाउ. I'll be flipping between these pages and all, so don't get confused. See guys, I was making the notes on agriculture, aviation sector. You've been given the option of notes making on the website. नोट्स पे आप जाओगे, सारे नोट्स आपके यहां पे दिख गए. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी. नाउ दिस वन, एविएशन सेक्टर. आई वांट टू व्यू दिस नोट. आई एम रीडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे समथिंग रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर, ठीक है. आई केम अक्रॉस अ क्लिपिंग दैट प्राइवेट कंपनीज, यहां पे इसको सर्च करते हैं. मैं ये सर्च कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनीज नॉट एबल टू. अच्छा, न्यूज आइटम क्या थी, चलो उसको देख लेते हैं. report of private companies misusing, something of that nature was there, misusing Udan scheme funds. कुछ ऐसी न्यूज थी कि जो उड़ान स्कीम के अंडर जो स्लॉट्स हैं, एयरवे स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स अच्छे से एलोकेट नहीं करे जा रहे. अब मैंने इसके आगे एक और चीज लिख दी, द हिंदू, ठीक है. Giving wings to better air connectivity, this is opinion. Do I have time to read opinion? क्या मेरे पास इतना, are you able to see this clearly? ठीक है. Do I have the time to read the opinion part? No, I don't have time. है ना. तो फिर मैं क्या करूं ऐसे केस में, just a minute. Just 1 minute. I'm just searching for the dark theme here. Anyway, तो अब मैंने क्या करना है, रिपोर्ट, मेरे पास ये टाइम नहीं है इसको पढ़ने का, है ना. तो व्हाट शुड आई डू, नीड ट्रांसपेरेंट उड़ान. ये मेरे टॉपिक के साथ में मैच करता है. जनवरी 26, ठीक है. ईयर ऑन उड़ान इज येट टू सोर. अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे गया, मैंने यहां से अपने कुछ नोट्स के लिए इसको कॉपी करना चाह रहा हूं मैं. एयर पैसेंजर एसोसिएशन का क्या कहना है, ये मुझे मेरे काम का नहीं है. इस न्यूज आर्टिकल में खोल सकते हो अपनी वेबसाइट पे भी, अपने ब्राउजर पे भी. इट वांट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम टू बी फाइन ट्यून्ड एंड रिकैलिब्रेट विद द डिटेल्स ऑफ मनी बीइंग स्पेंट. ठीक है, मैं इसमें से कुछ नोट्स लूंगा
कुछ चीजें जो मेरे को सिलेक्टिवली कॉपी करनी है और फिर मैं वो जाके अपने जेवी नोट्स में ऐड कर दूंगा, राइट। उड़ान स्कीम के बेसिक फीचर्स क्या है, लाइक आई वाज राइटिंग दिस, तो मेरे को एडिट करना है इस नोट को, ठीक है। अब मैं एडिट कर रहा हूं, इसके बेसिक फीचर्स क्या है। बेसिक फीचर्स में मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं एक वे से, ठीक है। अब जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एग्जाम पास में आ रहा है, आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स रटने हैं, सेम इंटीग्रेटेड नोट्स हैं आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के, सेम टू सेम इंटीग्रेटेड नोट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के। अब आप क्या कर रहे हो, इसको रेड कलर में या किसी और चीज में बोल्ड में मार्क कर दे रहे हो या इटैलिक्स में कर दे रहे हो। उससे बेनिफिट क्या होगा, व्हाइल यू आर revising things for the prelims mock test which is going to happen on, let's say, 15th of November, your eyes would stop only on these basic features which are in red color or which are in blue color. फिर उसके बाद instance of an Air India Express plane suffering a tail strike, ये सारी चीजें हैं। इसी को हम उतने हाई लेवल तक ले जाएंगे कि स्टार अलायंस क्या है, जो चीजें न्यूज में चल रही हैं एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। फिर हम दूसरी चीज इसमें लेके जाएंगे, 5:20 रूल क्या है इंटरनेशनल एविएशन के लिए, ठीक है। फिर इंडिया ओमन रिलेशंस में या इंडिया यूएई रिलेशंस में हमारा एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है, दैट टॉपिक इज इंडिया यूएई रिलेशंस में एक इरिटेंट है हमारे ये एविएशन सेक्टर में यूएई से आने वाली जो कंपनीज हैं, गल्फ अरब एमिरेट्स जो एविएशन कंपनी है, उसमें इनको वो नहीं दिया जा रहा, स्लॉट्स नहीं दिए जा रहे, लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्लॉट्स इंडिया में इनको एलोकेट नहीं करे जा रहे। फिर मैं और टॉपिक क्या इसमें ऐड करूंगा, आप बताओ, एफडीआई कितनी है, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए ना, पढ़ते हो रोज, सारी चीजें यहां पे लिख दो। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द एविएशन सेक्टर, जेट एयरवेज का फेलियर हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस का फेलियर हुआ। मेरा तो काम है डेली न्यूज एनालिसिस, मेरी तो रोजी रोटी उसी से आती है, लेकिन तुम्हारा जो सपना है वो इसी से पूरा होना है ना। तो तुम्हें देखना होगा कि जेट एयरवेज में क्या हुआ। अब जो जेट एयरवेज का फेलियर का जो बैंकिंग वाला पार्ट है वो आईबीसी में जाएगा, है ना। तो मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अभी jatinverma.org पे हमने ये फीचर तो दे दिया स्टूडेंट्स को कि क्लासेस के साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। तो while attending the classes you can make your notes here, right, on the website। फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, अगर ये आपने अडॉप्ट कर लिया तो दिस कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय 10 to 20% इफ यू आर एबल टू यूज दिस इफेक्टिवली। एवरनोट, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तुम लोगों को लगेगा, but Evernote is an application or is a kind of notes making website. We are gradually adding all the features of Evernote on our website. धीरे से ये notes making और ये सब यहाँ पे हो जाएगा। Now I'll tell you, before coming up for this class, I recovered my Evernote 49 minutes ago, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो Evernote क्या है, इसमें I'll take you through कि कैसे नोट्स आपको बनाने हैं। दिस इज माई Evernote अकाउंट, ये मेरे नोट मेकिंग और ये सब, इसमें कोई प्रीमियम वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक वर्जन इज टोटली फ्री। यू विल हैव योर नोटबुक्स हियर, जैसे हम नोटबुक्स बनाते हैं ना ऑफलाइन में, तो वैसे आपकी ये नोटबुक्स बन जाएंगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा पबएड था, तो आप यहाँ पे देखोगे 2014 2016 ये मेरी नोटबुक्स हैं, राइट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोalition पॉलिटिक्स। आई वाज रीडिंग अ बुक बैक देन इन 2015, तो मैंने इसके पॉइंट्स कुछ ऐसे बना लिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोalition रेजिम, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी इज एक्सपोज्ड टू 3 kinds of political activities. Bureaucrats have their own political views and opinions. Now when I am organizing my notes in this manner, this will be quite helpful for me to immediately recollect the information in the examination hall, because in the course of my preparation I would have come across this at least 30 times. वो आप जो भी करो, ठीक है, वन नोट लो या एवर नोट लो, अब इसमें ही पूरी जिंदगी मत गुजार देना पीएचडी करने में। ओनली थिंग इज नोट्स इफेक्टिव वे में बन जाते हैं इस पे, ठीक है, ऑनलाइन नोट्स। अब इसमें एवरनोट में क्या होता है कि मैं जो आपके लिए आई वाज पुलिंग आउट सर्टेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उड़ान स्कीम वाला हो गया। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे किया है न्यूक्लियर एनेबल्ड अग्नि मिसाइल। अब जब हम अग्नि मिसाइल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हिंदू में वेबसाइट पे ये एडवर्टीजमेंट आता है, ये क्लिपिंग आती है जिसमें अग्नि के सारे फीचर्स दे रखे हैं, आप देखोगे सारे के सारे फीचर्स अग्नि के यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं,
मैं क्या करने जा रहा हूं कि अग्नि के जो सारे फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, मैं उनको देखूंगा कि मेरे पर्पस के लिए कौन सी सही बैठती है। अग्नि 4, अग्नि 5, मैंने एक नोटबुक बनाई एवरनोट में जाके, और उस नोटबुक को मैंने नाम दे दिया, सोशल इश्यूज की नोटबुक मैंने अभी बनाई थी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। दिस इज न्यू नोटबुक, राइट, न्यू नोटबुक साइंस। आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो कि इनको समराइज कैसे करना, डोंट वरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोटबुक के अंदर मैंने एक नोट ऐड कर दिया। वेयर इज द नोट बटन, क्लिक टू ऐड न्यू नोट, ठीक है। अब आप न्यू नोट में क्या लिख रहे हो, मिसाइल्स। सॉरी, मिसाइल्स आपने टाइटल दे दिया, इसको ठीक कर लेना। फिर आप अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 डालोगे। अब सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ये लगेगा सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के साथ में जो खिलवाड़ करते हैं वो ये करते हैं कि दे विल गो टू दिस वेबसाइट, सारा कुछ जो है न्यूक्लियर कैपेबल्ड और ये सब लिखने लग जाएंगे, कॉपी करने लग जाएंगे, ठीक है। कॉपी किया और टेप डाला, ये मत करो गाइज, ये फिर मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। बिकॉज यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। इनिशियली इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, then recollect it and then to frame it in your own words and then type, ठीक है। अगर आप ये करोगे कि मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कौन इतना टाइम लगाएगा, आज मेरे पास टाइम कम है, ये आप अपनी आदत बिगाड़ लोगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली आई एम यूजिंग द टच, सो मैं इसको ये करता हूं कंट्रोल V। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग। और दूसरे लोग पता क्या करते हैं, वो कंटेंट राइटर बन जाते हैं। देयर इज अनदर कैटेगरी, तो दे विल बिकम कंटेंट राइटर्स। हमारे कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इसको समराइज करते हैं और आपके लिए वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं। आपको वो वेबसाइट पे दी गई इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे देखोगे नोट्स में, होम सेक्शन में आप गए, आपको जो वेबसाइट पे पॉइंट्स फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी गई है वो सेम ही है। व्हाट इज बल्क ड्रग पार्क? बल्क ड्रग पार्क है क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन कोलेटेड है, पॉइंट्स में है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इसमें बिल्कुल नहीं है, आपने यहां से ले ली। स्टिल ट्राई टू समराइज इट इन द पॉइंट्स फॉर्मेट इन दिस वे इन विच आई हैव मेड माय pubad नोट्स, ठीक है। हर चीज आपकी should get reduced। अब जैसे यहां पे लिखा है this was the 7th trial of Agni 4 missile। Is anybody going to ask you कि कौन सा ट्रायल था? Nobody is going to ask you। the last trial conducted, ये सब जरूरत नहीं है। Indigenously developed sophisticated Agni 5 having a range of 4000। अब आप क्या करोगे, चारों की चारों मिसाइल्स की आप रेंज ले लोगे, लिखोगे वर्ड रेंज, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू सरफेस नहीं है, सिंपली आप यहां पे लिखोगे RANGE, आपने ये क्राइटेरिया बना लिया, ठीक है। रेंज इज अ 2 लॉन्ग वेट इज अ 2 स्टेज। स्टेजेस कितनी है, अब यहां से आप इसको डिवाइड कर दोगे, स्टेजेस हर मिसाइल के लिए, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 1, अग्नि 2 के लिए ये क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा। रेंज, स्टेजेस कितनी है, 2 स्टेज है, 3 स्टेज है, फ्यूल टाइप क्या है, और उसके बाद न्यूक्लियर एनेबल्ड है या सरफेस न्यूक्लियर एनेबल्ड है या कन्वेंशनल है, बैलिस्टिक है या नहीं। बैलिस्टिक क्या होता है, बैलिस्टिक पता होना चाहिए ना, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह जाके उड़ान उद्घाटन करके आ जाओगे। बाय द वे आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इंटेलेक्चुअल, he keeps on digging out all these things कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और ये सब। तो हाथी वाली जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, राइट, तो गणेश जी भी जो है, हमारी कंट्री बहुत साइंटिफिक थी, वो सब उन्होंने गलती से बोल दिया था। तो पॉइंट समझ रहे हो, रेंज तुमने दे दिया, फिर उसके बाद स्टेजेस कितनी है, ये तुम्हारा क्राइटेरिया हो जाएगा। अब जब तुम प्रीलिम से कुछ दिन पहले इसको रिवाइज करोगे, सारी मिसाइल्स का डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने होगा। अब वेब क्लिपर का यूज कहां पे आता है, व्हेन वी गो टू दिस पार्ट। अब यहां पे मेरे को वेब क्लिपर इसमें से, इट विल हेल्प मी इन दिस वे, आई कैन गो टू वेब क्लिपर, आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। आप सिलेक्ट करोगे एरिया, तो एरिया कमांड मतलब जो भी आपके सिस्टम में कमांड है उसको देके
ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करोगे और यू विल पुट इट एट अ रेलेवेंट प्लेस। अब आप यहाँ पे देखोगे ये ब्यूटीफुल इमेज आपकी उसमें ऐड हो गई है। ठीक है, फर्स्ट नोटबुक में। फर्स्ट नोटबुक में मुझे नहीं ऐड करनी, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से ऐड करना चाहता हूं। डन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इमेज चली गई होगी। क्लियर, ये इमेज ही है ये जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया। आप इसको ऐड कर लोगे वेरी इजीली फ्रॉम दी स्क्रीनशॉट सेक्शन ऑफ योर दिस फोल्डर। ये यहाँ पे आ चुकी होगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे या कहाँ पे, जहां पे भी है, इसमें मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे पिक्चर्स में शायद सेव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से चेक करना होगा। डन, अब क्या होगा कि एट द ग्लांस ऑफ दिस नोटबुक यू वुड बी एबल टू रीड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, अबाउट दिस एंटायर पार्ट। सो दिस, ये उसमें थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में, मेरे को यहां से पुल आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप सभी नोटबुक्स को एक जगह देख सकते हो। मेरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की नोटबुक अगर आप देखोगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, मैंने यहां पे लिख रखा है फैक्ट्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में फैक्ट्स क्या है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने क्या कहा था, रैशनलाइजेशन, कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ दी स्कीम्स। ठीक है, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा या मैं इसको रेड कलर भी दे सकता हूं। कलर अगर मुझे इंसर्ट करना है, हाईलाइट कर सकता हूं, कुछ भी मैं इसके साथ, आई कैन प्ले अराउंड विद दिस वर्ड, ताकि अगर मेरे को सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी कमेटी थी। अब ये तो है नहीं कि फैक्ट्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताया कि सी रंगाराजन कमेटी किस किस के काम आ सकती है ना, तो वो सारी चीजें हैं। यहां पे आपने इसको बोल्ड कर दिया, फटाफट से नजर पड़ जाएगी। इश्यूज क्या हैं, नाउ यू कैन सी दैट व्हाइल डीलिंग विद दिस, ये आपने इसको रेड में कर दिया, किसी भी फैक्ट को रेड में कर दिया। आप एक पैटर्न ले लोगे, जो फैक्ट्स हैं वो रेड में रहेंगे, जो आपको पढ़ने हैं, जो आप भूल जाते हो बार बार। हिस्ट्री के नोट्स यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री आप बुक्स में पढ़ सकते हो, लेकिन हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए यू कैन मेक अ नोटबुक। ठीक है, यस, अपनी लैंग्वेज में करोगे तो ही फायदा है। आप अपनी, इसको ये कर लिया, अब इसको वापस चलते हैं, इसको कर दिया हमने सेव, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आई यूज टू यूज इट वे टू मच, उस टाइम पे काफी सही लगता था मुझे ये। कोई भी आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, आप उस पे, जो भी डिवाइस है आपके पास में, इस पे इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे इश्यूज विद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये उस टाइम के लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स एग्जिस्ट इन सीलोज planned without any horizontal or vertical integration, resulting in multiple sectoral district plans. Schemes are often rigid and do not provide flexibility. No matter whatever amount of analysis I'm flooding you with, कितना भी analysis मैं दे दूं, it has to be reduced into points. Either I should do it in some cases or you should do it in your own case. इस पे नहीं तो जेवीस प्लेटफॉर्म पे, जब क्लास चल रही होती है उसको जेवीस प्लेटफॉर्म पे डाल लो, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दो। अब जो क्लास नोट्स हैं वो तो देखो, जब आपको क्लास रिवाइज करनी पड़ रही है तब आपके लिए फ्रेंडली रहेंगे कि क्लास के नीचे ही आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। राइट, जो भी आपने क्लास अटेंड करी है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोर्सेज में गए और आपने उसके नोट्स जो भी क्लास के मैंने बनाए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पॉलिटी की नोट्स चलते चलते बन रहे हैं। अब उसको कंसाइज करने का जो काम है, इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, इनिशियली आपको ये थोड़ा टफ लगेगा। अब यहां पे देखोगे पीडीएफ, जैसे ही एम आई लॉग्ड इन, यस, इस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करूंगा तभी नोट्स दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी सिंस आई एम प्लेइंग इट हियर तो इट्स नॉट वर्किंग। अब आप इसके नोट्स यहाँ पे देख पाओगे, क्लास के पास यहाँ पे नीचे इसका टैब रहता है, यू आर मोर फ्रेंडली विद माय वेबसाइट। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी ही होंगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा कि चीजें जो है नहीं हो रही हैं तरीके से, ये दिक्कतें होने लग जाएंगी। ठीक है, सो डोंट बी माइजरली इन सो फार एज पुटिंग इन हार्डवर्क इज कंसर्न्ड। ठीक है, डन। ये था कि नोट्स कहां बनाएं। अब अगर आप पूरे एडिटोरियल को सेव कर रहे हो या उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, उसको बाद में समराइज नहीं कर रहे हो, समराइज से मेरा मतलब है टू कैप्चर द एसेंस आउट ऑफ इट। ठीक है, पीपीटी से ऑफलाइन नोट्स, पीपीटी से ऑफलाइन नोट्स बना लो, बट इसमें यू कैन ऑल्सो गिव द टैग्स, हैशटैग भी दे सकते हो, टैग भी दे सकते हो। इसमें टैग का भी ऑप्शन रहता है,
तो ये इश्यूज सारे आपके एक जगह आ जाने चाहिए। पंचायत इशू क्या है? मोस्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डील्स विद द मैटर्स ईयर मार्क्ड फॉर द पंचायत, ठीक है, एंड येट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंटीग्रेटेड वेल इनटू द centrally sponsored schemes. Sector specific works planned under centrally sponsored schemes are not reflected in the panchayat plans. ये मेरी पहली रिवीजन के नोट्स हैं। जब मैं इसे अगली बार रिवाइज करूंगा गाइस, तो मैं क्या लिखूंगा? सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स धीरे धीरे, ताकि मेरे को एक दिन में 100 टॉपिक जब रिवाइज करने होंगे। सेक्टर स्पेसिफिक वर्क्स प्लान्ड अंडर द स्कीम्स आर नॉट इंटीग्रेटेड। जब 10 बार रिवीजन कर लोगे, रिवीजन क्विकली होगा, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स आर नॉट इंटीग्रेटेड। तो most of the centrally sponsored schemes deals with the matters earmarked for the panchayats and yet panchayati raj institutions are not integrated. Simple point क्या बनेगा? ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। जब ये पॉइंट मेरे माइंड में बैठ जाएगा, ये सारा कुछ डिलीट। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डन। समझ में आया? धीरे धीरे से ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं रिवीजन में ये अपने आप सेट बैठ जाएंगे। अब तुम ये पूछो कि तुम रिवीजन करोगे कब, है ना? जब तक डंडा नहीं पड़ता। इंडियन जेनेटिक कोड में ये डिफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि जब तक हमें प्रेशर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करते, राइट? प्रेशर होगा तो ये रिवाइज करने में तुम्हें लगेगा कि इतना टाइम लग जाएगा, कैसे करेंगे? ईच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब तक आंसर राइटिंग वगैरह, मेंस वगैरह की नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। टाइम बाउंड मैनर में इसको करने के लिए ये जरूरी है। यू कैन पुट अ रिमाइंडर। जो मैंने बताया कि एक चीज जो आपने पढ़ी है उसको 3 बार रिवाइज करना है, इसमें रिमाइंडर ऑप्शन भी रहता है फ्री वाले वर्जन में। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हो तो कहीं और लगा लेना, ये सब मत करना। यहां पे आप रिमाइंडर पुट कर सकते हो, इट विल रिमाइंड यू ऑटोमेटिकली कि आपको इस दिन ये पढ़ना था। दैट्स इट। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ ऐड अ टैग। टैग क्या है? जब आपने इसको टैग दे दिया कि मेरे को ट्रांसपेरेंसी से सारा कुछ पढ़ना है, सर का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है या कहीं पे, तो आपने क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आपने कहीं पे भी कुछ सेव किया होगा। यू कैन ऐड मल्टीपल टैग्स ऑल्सो, ठीक है? मल्टीपल मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस। तो जब आप उसको सर्च करोगे यहां पे जाके अपने टैग के अकॉर्डिंग, इस नोट सेक्शन के पीछे आगे कहीं, तो आपको सारे नोट्स आपके एक जगह मिल जाएंगे। फिल्टर या कुछ में टैग्स क्या है, आपने टैग्स में सिलेक्ट किया ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो इट विल शो यू दैट पर्टिकुलर नोट, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जो मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन कंसाइज करना है, कैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंड ऑल, तो टीचर ये बोलते थे कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इन ऑर्डर फॉर यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। तो पहले हम क्या करते थे, मतलब कुछ भी काम मैं करूंगा तो मैं इंग्लिश में सोचता था, ठीक है, तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होने लग गई, जितनी भी है ठीक ठाक है। तो वैसे ही जब आप इस इंग्लिश के साथ खेलने लग जाओगे, अपनी पॉइंट्स को अपनी भाषा में लिखने लग जाओगे, भले ही गलतियां करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, लेकिन पॉइंट्स कंसाइज फॉर्म में आपके पास हर टॉपिक के पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, ये तो वो है जो न्यूज़पेपर ने आपको दिया, ये तो वो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, टीआरपी और ये सब। फिर हमारा काम आ जाएगा कि हम आपको क्या करा रहे हैं, आपको उस दिशा में सोचना है, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे काम के आगे एक नई स्टेज आ जाएगी, आप खुद से ऑटोमेटिकली ये होगा, आप खुद से ये सोचने लगोगे, अगर ये क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए, ये पूछा जाए तो क्या करूंगा। एनालाइज द रोल प्लेड बाय वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज, कन्वेंशनल क्वेश्चन। फिर उसका हाई एंड वर्जन क्या है, व्हाई वुमेन आर नॉट एबल टू पे, व्हाई वुमेन आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम इन दी पंचायती राज बॉडीज। पति सरपंच, ये सब फिनोमिना है ना, हस्बैंड इज द सरपंच, वाइफ इज जस्ट अ काइंड ऑफ डमी कैंडिडेट। तो ये सारी चीजें हैं। और पंचायती राज के बारे में सोचोगे, ट्रिपल एफ, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, वो तो स्टैटिक में टॉप पे आ गया। फिर उसके बाद आप ये सोचोगे कि मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में सोचा, ये क्वेश्चन मेरे जहन में, मेरे दिमाग में हैं, बट क्या मैंने
इनके अराउंड सोचा, ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा जब आपकी 10 12 4 5 रिवीजन होने लग जाएंगी तो आप प्रोसेस करने लग जाओगे। वो होता है ना, लोग साइंटिस्ट इस स्टेज पे जाके बन जाते हैं, तो आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको उस टॉपिक का साइंटिस्ट बनना है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। अब आप यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के इफ यू कम अक्रॉस इन दी पीपीटीज देन यू कैन इनकॉर्पोरेट देम, ठीक है। और फैक्ट्स आपने ऊपर हाईलाइट कर देने हैं इसके, बीके चतुर्वेदी कमेटी, और क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की डेफिनेशन क्या होती है ये लिखोगे। बट बहुत स्मार्टली आप देखना, मैं ये आप होमवर्क करके आ रहा था अभी आपकी क्लास के लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो मेरे दिमाग में है तो मैं उसको क्यों लिखूंगा भाई, समझ रहे हो ना। जो स्कीम्स यूनियन लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 60-40 की रेशो में होता है, ठीक है। धीरे धीरे से इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इन स्कीम्स का नंबर कम किया गया। जो चीजें मेरे माइंड में फीड हो चुकी हैं मैं उनको क्यों लिखूंगा, एज सिंपल एज दिस, डन। अब समझ में आया नोट्स कैसे बनाने हैं। अब अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं, यही सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में करनी है। हैंड रिटन नोट्स में जो स्ट्रिंग्स वाली जो नोटबुक होती है उसको आप लगा लो, सेक्शन वाइज वो नोटबुक्स होती है, वो मैंने पहले भी यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स के नोट्स जो बनाने हैं उसको कैसे करना है। रिसर्च वाला काम तो हमारा हो गया, एनालिसिस हमने आपको दे दिया। जैसे कल की क्लास में हमें एक टॉपिक डील करना था, आर्टिकल 105, शुड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बी कोडिफाइड, शुड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बी कोडिफाइड। तो आपको यही लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, दैट्स इट। 5 पॉइंट उसके, 5 पॉइंट उसके, आपका काम हो गया। मैं जानबूझ के आपको नोट्स नहीं दूंगा, कुछ कुछ एरियाज के दे दूंगा जो बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज हैं। जब मैं बोलता हूं इफ यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट लिख लो, या मेरा टेम्पो चेंज होता है, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन मैं करता हूं, तो वो पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। दूसरा, एडिटोरियल को पढ़ते हुए आपको खुद से ये सारांश उसका निकालना है, एसेंस यू हैव टू derive out of it. Ballistic missile like Agni 1, 2 and 3 and Prithvi have been included in the arsenal of armed forces. अब यहां पे पृथ्वी आ रहा है तो पृथ्वी में भी वही रेंज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्यूल कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, क्या फ्यूल यूज होता है, तो ये लिक्विड फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन यूज करी जाती है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसके आगे क्या चल रहा है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ये हो गई आपकी फैक्ट्स की प्रिपरेशन। लास्ट स्टेज, अब अगर मैगजीन में, मैं एक और चीज बता देता हूं, हमने एक डॉक्यूमेंट अभी प्रीलिम्स किलर जो चल रहा है वेबसाइट पे आजकल, वेयर इज इट, डाउनलोड्स प्रीलिम्स किलर। अब इफ यू आर गेटिंग सम रेडीमेड इंफॉर्मेशन ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स, 3 नवंबर का प्रीलिम्स मैंने देखा था, प्रीलिम्स में इफ यू आर गेटिंग सम वेरी रेडीमेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको आप क्या करोगे, अब जैसे मिरर ऑर्डर एंड द हेग कन्वेंशन, ठीक है। मिरर ऑर्डर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने चाइल्ड राइट्स का पूरा इशू पढ़ना है, तो आप अपने नोट्स में उसे लिख लोगे। वैसे तो पीपीटीज वगैरह जो है थोड़ा सा उसमें टेक्स्ट ज्यादा रहता है। अब ये हेग कन्वेंशन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, यू नीड नॉट कॉपी पेस्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि देयर इज नो नीड टू समराइज दिस, यू कैन सिंपली डू द वेब क्लिपिंग ऑफ इट, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं ब्राउजर पे, jatinverma.org पे, कि मैंने क्या किया, ओके, अब मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो ये यूज नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल स्क्रीनशॉट इसका लूंगा और फिर अपने डाउनलोड्स या स्क्रीनशॉट्स में से जाके एवरनोट में ऐड कर दूंगा, अपने नोट में, चाइल्ड राइट्स वाले नोट में। मैंने शायद ऐड भी किया था अभी, ऑल नोट्स, यस, child issues, here we are, you can see this, the Hague Convention on Civil Aspects of International, ये सेम चीज आपकी यहां पे आ जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हो पीछे वाटरमार्क और ये सब दिख रहा है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो बाद में, बार बार रिवाइज करते टाइम। ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा सहूलियत और हो जाती है, वरना ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है।
तो मतलब देखो, प्रिपरेशन गाइज आपको करनी ही है। मेरा एफर्ट रहेगा इसमें 10%, 20%, 30%। अब जितना ज्यादा आपकी अपनी जिज्ञासा है कि मतलब मेरे को ये अचीव करना ही है। अब यहाँ पे देखो, ये 2016 का आर्टिकल है, ये मेरे को एडिटोरियल अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, ये शेयर्ड है, ठीक है, मैंने किसी फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया या कुछ। तो 2014 का आर्टिकल है, बट आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन एवरी टॉपिक, बिकॉज एक स्टेज आई तो मेरे को लगा मैं खुद से प्रिपेयर करता हूं, बहुत हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को सर्च करेंगे, एफटीए की वजह से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। इसकी समरी दे रखी है, ये पूरी क्लिपिंग मैंने यहां पे इंसर्ट करी हुई है। एज यू कैन सी हियर, आई डिड नॉट एडिट इट। कभी कभी टाइम नहीं होता था तो क्या करो, एडिट कर, इसको ऐड कर लिया, और फिर बाद में अब यहाँ पे देखोगे सारे चैलेंजेस वगैरह काफी अच्छे से इसके दे रखे हैं। किसी चीज का सारांश समझने में प्रॉब्लम आती है, एसेंस समझने में, तो उसको पूरा जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है एडिटोरियल का, तभी जाके आपको वो चीज समझ में आती है। तो ऐसे केस में आप एडिटोरियल्स का स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मैंने बता दिया। अब आते हैं ईयू माइग्रेशन इशू, सितंबर फर्स्ट वीक। यू कैन कैटेगराइज इट इन दिस वे। यहां पे देखोगे डनलिन रेगुलेशन, रिफ्यूजीज शुड अप्लाई फॉर असाइलम, ये सारी चीजें हैं। फिर साइंस एंड टेक, इसरो टू लॉन्च जीएसएलवी D6, सारा कुछ आप यहाँ पे कुछ इस वे में ऐड कर सकते हो, क्लियर। तो कभी कभी अब जैसे कोर्ट्स है, कोर्ट्स में मेरे को अच्छा लगता था, तो ये देख सकते हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा जज्बाती इंसान हूं मैं। नाउ स्ट्रेंज एम्बिवेलेंस, ये क्या चल रहा है, कभी कभी नहीं होता टाइम, ठीक है। तो ये अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 13(1), तो मेरे को ये याद रखने हैं। कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जो मुझे याद नहीं रहती, तो मैं क्या करूंगा, एक नया नोट बनाऊंगा। पढ़ रहा हूं मैं जजमेंट, गवर्नर वाले सेक्शन में मेरी जजमेंट वहां पे एडिड है, व्हेन आई एम रीडिंग गवर्नर, तो कियोटो ओलोहन मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। कियोटो ओलोहन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू जजमेंट, रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, यहां पे लिखना है आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ताकि आपके लिए रेडी रेकनर हो सके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइट्स इन दी हिस्ट्री, वो तो आप पेज पे ही लिख लोगे, क्योंकि ये सारे कुछ में अपडेट नहीं होना। ये जजमेंट्स में कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी कुछ पुरानी जजमेंट को रिवर्स कर देता है, जैसे आज हमने राजीव गांधी वाले केस में देखा। राजीव गांधी वाले केस में पहले तो नॉर्म ये था कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ सेंटेंस गिवन अंडर सेंट्रल लॉ or given under a case, given in a case which was investigated by central agency, but आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर कैन वेरी मच pardon the sentence given under a central law as well। तो कियोटो ओलोहन केस आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये तो हमने दे दी गवर्नर की हेडिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट एक हेडिंग दे दी, इसको आपने बोल्ड बोल्ड कर दिया अच्छे से, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये जजमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर आप कुछ और स्कीम पे बना रहे हो, जैसे एमपी लैड्स के कुछ फैक्ट्स आपके सामने आए डीएनए में, कुछ फैक्ट्स आए करंट अफेयर्स कोर्स में, उनको आप समराइज करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करते जाओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करते चले जाओगे, फिर आप देखोगे कि आपका नोट बहुत ही बुरिश हो गया, लेंदी हो गया। फिर आप उसको जिस दिन टेस्ट होगा या कुछ आंसर राइटिंग करोगे, उस दिन आप उसको रिवाइज करो। जब फिर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करा था इशूड विद सीएसएस, ठीक है। फिर आगे आ गया करा क्या जाए। अब करा क्या जाएगा का आंसर कहां होगा, व्हाट टू डू टू इंप्रूव दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशंस क्या है, यानी कि फिर आपने रिकमेंडेशंस लिखना शुरू कर दिया। अब आंसर राइटिंग पे मैं कुछ थोड़े दिन में एक और क्लास लूंगा, पहले यू हैव टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग। रिकमेंडेशंस क्या है, वे फॉरवर्ड, सजेशंस, हाउ टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ सीएसएस। लेकिन अगर मेंस आंसर राइटिंग में या मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कुछ और जो कि मेरे नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सो इट इज एडिंग अ न्यू रिंकल टू माय ब्रेन, इट इज एडिंग अ न्यू डायमेंशन फॉर मी। तो मैं उस क्वेश्चन के वे में अपने नोट्स में एक और सेक्शन ऐड कर दूंगा। अगर कोई मिसिंग पार्ट था, किसी एडिटोरियल ने, किसी और चीज ने मेरे को और ज्यादा एनलाइटन करा, मैगजीन आपने पढ़ी, उसमें आपको कोई और अच्छा आर्टिकल दिख गया, आप उसे लिख दोगे उसी वे में एक नई हेडिंग बना के। कोशिश करो कि हेडिंग बनाओ, तो उससे क्या होता है, आप चीजों को फिनोमिना के वे में इमेजिन करना शुरू करते हो, और जब आप ये करते हो तो आपके माइंड में एक कंपार्टमेंट, एक सेल रेडी हो जाता है कि जब अगली बार वो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी
तो रिकलेक्ट कैसे करनी है, समझ में आया? फिर आप अपने आप चीजों को पैराफ्रेज करके कंसोलिडेट करने लग जाओगे, और क्वेश्चन आया नहीं मेंस में, आपकी कलम शुरू हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि आप सो रहे हो फिर भी आपका पेन चल रहा है। For current affairs, yes, you can make the notes from the magazine. That is why we have made the magazine an essential part of this course, current affairs. ठीक है, तो उसको अब मैगजीन में क्या होता है ना कि नोट्स आरटीआई पे इस बार ही आ जाएगा, 15 इयर्स हो गए आरटीआई को, अक्टूबर की मैगजीन में आपको मिल जाएगा। 15 इयर्स हो गए आरटीआई को, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा। अगले दिन फिर ये आ जाएगा आरटीआई एप्लीकेंट्स डिटेल्स नॉट बीइंग रिवील्ड, वो अगली मैगजीन में आएगा। अब दोनों चीजों को आपको कंपाइल करके यू हैव टू पुट देम एट वन प्लेस। ये जो आप सिंपल लुकिंग नोट्स देख रहे हो ना, ये एक जगह से नहीं है, ये इश्यूज जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, ये न्यूज़पेपर में जो हिंदू का क्रिटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, दिस मच पार्ट। पंचायत इश्यूज शायद योजना से लिया होगा, पंचायत के बारे में योजना ही बात करता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर इंटरफेयरिंग इन दी ऑटोनॉमी ऑफ पंचायती राज बॉडीज, ये सब आ गया। फिर रिकमेंडेशंस मैंने सेकंड एआरसी से ली होंगी, ये मुझे पता है, ठीक है। सेकंड एआरसी ने लोकल बॉडीज रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट, ये वहां से लिया है। आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल शेयर, ये तो फिर भी छोटी वाली नोटबुक है मेरी, तो आई विल शेयर ऑल दीज नोट्स insofar as their contemporary relevance is concerned with you in our classes, ठीक है। मजा आएगा इन सब टॉपिक्स को पढ़ने में भी, अगर थोड़ा सा तुम लोग अटैच होके पढ़ोगे यूपीएससी की तैयारी में, चाइल्ड इश्यूज और ये सब। अब मैगजीन से आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जैसा मैंने बताया, कुछ भी जस्ट प्ले अराउंड विद दिस और सोचो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बार बार मेंस का, इस बार अगली बार आपका जो है मेंस का बुकलेट भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हेग कन्वेंशन क्या है, फिर चाइल्ड इश्यूज पे मैं आपको और भी चीज दिखा देता हूं कि चाइल्ड इश्यूज पे हम क्या पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में। सी दिस चाइल्ड इश्यूज का पूरा पीपीटी, ये सारा कुछ है, ठीक है। चाइल्ड इश्यूज में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अंडर सेक्शन 15 क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें जब एक जगह पे आ जाएंगी, 10 बार रिवाइज हो चुकी होंगी, क्योंकि तुम लोग और कुछ इधर उधर हाथ पैर नहीं मार रहे हो। क्या चांसेस हैं कि तुम्हारा प्रीलिम्स या मेंस रुकेगा, खुद बता दो। समझ आ रही है बात? अब यहां पे सारा कुछ डिफरेंस बिटवीन पोक्सो एंड जेजे एक्ट सारा कुछ कवर्ड है। आपको क्या करना है, इसको या तो इस पीपीटी में उस चीज को बी इंटेलिजेंट इनफ। अब ये नहीं कि मैंने एवरनोट बता दिया तो एवरनोट पे शुरू हो गए एवरी टाइम, नहीं। अब यहां पे आपको लगता है कि बस ये वाली जो इंफॉर्मेशन है मेरे नोट्स में लैकिंग है, बाकी इंफॉर्मेशन तो सारी इस पीपीटी में दे रखी है, तो आप इसको उठाओगे पीपीटी में, वर्ड डॉक में ऐड कर दोगे, है ना। दिस मच ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, तो ये तो बेसिक सेंस है बिल्कुल ही, ठीक है ना गाइज। तो ये आपको देखना होगा, सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। 3 एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स में काम कैसे होता है, मर्फी बेबी सिंड्रोम क्या है वो आगे आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कर रही है, अमेंडमेंट्स क्या हुई, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट क्या है। अभी जो कीनिया वाली जजमेंट थी, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे लिए ऐड हो ही जाएगी, क्योंकि द टीम इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। हम ये सारी चीजें इसमें अपडेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो भी चीजें हिंदू में आ रही हैं वो अपने आप पीपीटीज में ऐड होती चली जाएंगी। हाइलाइट्स ऑफ द एडॉप्शन रेगुलेशन, कारा रूल्स गवर्न बोथ चाइल्ड अडॉप्शन टू अ रेजिडेंट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई जो बोल्ड में है। फिर हेग अडॉप्शन कन्वेंशन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वो भी आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्ट ने क्या क्या चेंजेस करी, क्या क्या नहीं करी, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इसको पैराफ्रेज करना और मेमोराइज करना, बार बार रिवाइज करना है। मैंने सिर्फ ये कहा डेली करंट अफेयर्स को पढ़ो फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। वीडियो जेवीज मैग, देखो डेली करंट अफेयर्स कोर्स आपको लग रहा है कि नई चीजें हो रही है, अभी क्या कर रहा हूं मैं करंट अफेयर्स कोर्स में, वी आर डूइंग दिस पार्ट। अभी हम टॉपिक्स बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, थोड़ा फ्लूइडिक वे में। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा तो पेपर वाइज अप्रोच शुरू हो जाएगी। जीएस मेंस पेपर 2, उसमें गवर्नेंस रिलेटेड, पार्लियामेंट्री बिल्स रिलेटेड, इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, सेबी,
ये सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है। NHRC रिलेटेड न्यूज क्या है, क्या क्या नई चेंजेस हुई, हैकी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नीट, वो जीएस पेपर 2 क्लोज हो जाएगा। फिर जीएस पेपर 3, फिर जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यही सारे टॉपिक्स, मिसाइल्स वगैरह हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो मेन थिंग इज जो चीजें आप खुद पढ़ते हो उसके लिए मैंने नोट्स बता दिए। कभी कभी मेरी तरफ से काफी एलैबोरेट डिस्कशन रहता है किसी चीज के ऊपर, तो उसके नोट्स आप यहां पे बनाते चलो, कोलेट करते चलो। जेवी पे भी बना सकते हो, वेबसाइट पे भी जो नोट्स मेकर है। नहीं, थोड़ा घूम आओ प्रतीक, घूम आओ। तुम्हें अभी लगेगा थोड़ा घूम के आना, सैर सपाटा करके, फिर लगेगा अरे यार ये तो वही चीज दे रहे हैं रीपैकेजिंग। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आई जस्ट शेयर द स्टैटिस्टिक्स विद यू। 750 people, around 750 have joined the prelims test series. Can you ask the figures for mains? Around 270 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो मेंस की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, जो हाफ वाली में एनरोल कर रहे हैं। वाई आर दी फिगर्स सो स्क्यूड? क्योंकि 10 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और वो सिर्फ हॉबी के लिए प्रीलिम्स देते हैं। उनको पता होता है उनका नहीं होगा, उनको देना ही नहीं है, इसीलिए नहीं होगा, मजे लेते हैं। इसीलिए कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, PT 365, मैं विजन की बात कर रहा हूं, गलत है, ठीक है। आई एम ऑल्सो अ कोचिंग इंस्टीट्यूट नाउ, आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो डाइकोटोमाइज किया गया है ना, जितना हार्म ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, सिर्फ यही नहीं और भी इंस्टीट्यूट्स पीटी के लिए डराओ बच्चों को। पहले क्या होता था 2009-10 में, 9-10 तक, 8 तक मैं कहूंगा, पैटर्न चेंज हुआ 2011 में, तब तक ये चीजें जो है ना अलग अलग होती थी। अब आप यूपीएससी प्रीलिम्स में माय डियर क्वेश्चंस देखोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड ही आपको मेंस में लिखना होता है। तो यूपीएससी हैज गॉट अ लीवे टू आस्क और टू चेक यू ऑन डिफरेंट पॉइंट्स इन अ स्टेटमेंट, ठीक है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, हो सकता है आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हो सिर्फ, ठीक है। अब यहां पे अलाइड सेक्टर्स को मिलाकर अभी कितना शेयर है पता होगा। अब आप क्या गलती करोगे, एग्रीकल्चर का शेयर तो पता था, अलाइड सेक्टर्स के साथ मिला के नहीं पता था, हो गई गलती, गया क्वेश्चन हाथ से। दूसरी चीज क्या है, अगर ये क्वेश्चन 2008 वाला जो पुराना पैटर्न था उसमें देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था, हाउ मच इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, इन द जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 15%। वो इजी था, वहां पे रट्टा मारने वाला काम था। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अब अलग नहीं रह गई। 10-15 क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में छोड़ के तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर 60 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं 120 मार्क्स आ जाएंगे ना। होना मुश्किल होता है 50, इसीलिए तो वो जो 50-60 क्वेश्चंस हैं उनको केटर करने की कोशिश करो। मैं बार बार यही बात कहता हूं, ठीक है। अगर तुम ये करोगे ना कि भाई प्रीलिम्स की PT 365 पकड़ लेते हैं, कुंजी हाथ लग गई, दिस इज नॉट अ कॉलेज एग्जाम कि MBD की गाइड आ जाएगी, शॉर्टकट्स आ जाएंगे, चीट कोड्स आ जाएंगे, फालतू की बातें हैं वो, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें मत करो, मेंस को टारगेट करके चलो। प्रीलिम्स 3 महीने पहले प्रीलिम्स से हम प्रीलिम्स फोकस्ड अपने आप हो जाएंगे। इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स का कोर्स जनवरी ओरिएंटेड प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएगा, तो चीजें आपको भी लगने लगेगा कि हाँ प्रीलिम्स एक दिख रहा है कि प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, राइट। 20 क्वेश्चंस के पीछे यदि भागते रहे, 30 क्वेश्चंस के पीछे भागते रहे, उसके प्रोसेस में 70 क्वेश्चंस पे काम ना करना, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। विच इज व्हाट यूपीएससी इज indirectly telling through its question papers of prelims in last few years। तो तुम्हें ये चीजें समझनी होंगी। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे भी एक बार गो थ्रू हो लेते हैं इस पीपीटी पे, कुछ नया इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, कवरेज, फंडिंग, क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। 1.5% ऑफ ऑल राबी क्रॉप्स, और ये सब कहां रुक रहे हैं फैक्ट्स। अरे मूर्खों मेरी बात सुनो, यहाँ पे यही चीजों के अराउंड तो एनालिसिस, सॉरी फॉर दिस। तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेलीग्राम पे, इसीलिए मैं इनका रिप्लाई ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। गुस्सा मत मानना, आई ट्रीट यू एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो पॉइंट ये है कि ये चीजें जो रेड में दे रखी हैं ये और क्या है, बनाते रहो, इधर उधर मारते रहो जख, मेरा कुछ नहीं जाएगा।
फिर मुझे ही कोसोगे एंड में कि सर के कोर्स ज्वाइन किया था हमारा कुछ नहीं हुआ। द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स, लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना, और क्या करोगे इससे ज्यादा, और क्या कर लोगे बताओ। अब अगर 10-20 क्वेश्चंस उसमें से गलत आ गए, हिस्ट्री में थोड़ा यूपीएससी डीप चली गई, वो एक अलग बात है ना। अब हमें क्या करना है, 50% ही चाहिए प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। UPSC 2017 previous year question, which of the following are envisaged by right against exploitation in the constitution? Did we cover this in polity? Yes, we did cover this. Prohibition of traffic in human beings. The notes and the PPTs have been notes, जो PPTs हैं वो they have been prepared in such manner that you are easily able to attempt these type of questions. ठीक है, दिस इज देयर। नाउ टॉपिक कवर्ड, अब यहाँ पे देखोगे प्रोहिबिशन, ये टॉपिक कवर हुआ था क्लास में, ठीक है, कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं आती। दैट इज आई एम टेलिंग यू कि एक फेथ के साथ में अगर ज्वाइन किया है तो फेथ के साथ में आप थोड़ा सा पढ़ते जाओ। क्वेश्चन वाली चीज मैंने एड्रेस कर दी, कंसाइज करना आपका काम है। शुड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपीयर बिफोर द कोर्ट्स ऑन समन्स, जस्टिफाई योर पॉइंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप पूछे जा रहे हैं कुछ ऐसे कि क्या स्पीकर को, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को कोर्ट के सामने आना पड़ेगा अगर कोर्ट ने समन दिए हैं? नहीं, ऐसे केस में पार्लियामेंट का जो लॉयर होगा, अटॉर्नी जनरल या किसी और को भेज दिया जाता है, ठीक है। ब्रिंग आउट, क्या उनका जाना जायज है? अटॉर्नी जनरल का स्पीकर के बिहाफ पे जाना जायज है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आएगी, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, है ना। तो नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने, स्पीकर ने ये कहा एंटी डिफेक्शन, कैश फॉर वोट स्कैम हो रहा था, ये मैं समझा दूंगा। तो फिर उसके बाद 2006 में कैश फॉर क्वेरी स्कैम दोबारा से आया। ब्रिंग आउट द पावर्स एंड, तो ऐसे केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आएगा, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करोगे। अंडरलाइंग चीज क्या है इस क्वेश्चन के, अंडरलाइन क्या है? हु इज द स्पीकर? स्पीकर इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। हु इज द जुडिशरी हियर? व्हाट इज जुडिशरी? व्हाट आर कोर्ट्स हियर? जुडिशरी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गया ना, लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी। तो यू हैव टू सी द अंडरलाइंग सेंस ऑफ द क्वेश्चन दो, और फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 121 और बाकी के आर्टिकल्स, जिसके बेसिस पे आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियल रिव्यू, लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है, अगर स्पीकर की गलती है तो स्पीकर को समन किया जाए, राइट, ये सारी चीजें हैं। ब्रिंग आउट द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देन legislative assembly powers of the speaker to allow a secret sitting when the leader of the to appoint to permit a member to address the house in his mother tongue, ये कल परसों कवर किया था। तो डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ये सारा कुछ है, ठीक है। नोट्स क्या होंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। रिमूवल, इलेक्शन, ये तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए ये पॉइंट्स, ये तो इतनी बार पढ़ लोगे, इतने अच्छे से समझाया जा रहा है ना। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। और लैंडमार्क जजमेंट्स क्या है? कियोटो होलोवन, जैसा मैंने बताया, पुट ऑल दी जजमेंट्स रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर एट वन प्लेस। दिस वर्डिक्ट हैज आल्सो मेड द स्पीकर्स ऑफिस सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। Office of Speaker, it made it clear that court's jurisdiction would not come into play unless the speaker passes an order leaving no room for intervention prior to adjudication. तो ये सारी चीजें। Show the relationship between main points. Use your own words to summarize. While making notes, use your own words to summarize. Illustrations, examples and diagrams can help to put ideas. धीरे धीरे से आप अपने आप बनाने लग जाओगे diagrams वगैरह, ये दिख जाएगा। Start the answer writing practice from now onwards. It is with this intention we have come out with मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम। अभी तुम्हें लगेगा कि अभी ज्वाइन करें या बाद में ज्वाइन करें, अभी तो कुछ आता भी नहीं है। वी हैव केप्ट इट फ्लेक्सिबल, बट थोड़ा सा तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए एक एलिमेंट रखा गया है उसमें कि ये चीज करो कि मेल करो, मेल डालो कि हमें टेस्ट जो है पोस्टपोन कराना है। उसका रिप्लाई टेलीग्राम पे या कहीं पे मैं खुद तुमसे पूछूंगा कि भाई क्यों बार बार पोस्टपोन हो रहा है। होगा इनिशियली टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, फोबिया होगा, एक आंसर लिखने में 1 दिन लग जाएगा, बट दैट इज अ प्रोसेस, सबके साथ वो होता है, ठीक है। तुम कोई अलग नहीं हो, तो इसलिए वेरी राइटली टाइम्ड नाउ। पॉलिटी का कुछ सिलेबस हमने कवर कर लिया है, 18-17 तक पॉलिटी कवर हो जाएगा।
तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अब, ठीक है, आंसर राइटिंग वगैरह पे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर उसको पोस्टपोन ही करते रहोगे। मेक देम मेमोरेबल यूजिंग कलर, पैटर्न, हाईलाइटिंग, एक्रोनिम्स, ये सारा कुछ धीरे धीरे से जब चीजें रटने के कगार पे आ जाओगे तब अपने आप होने लग जाएगा। रीड थ्रू टू मेक श्योर दैट दे आर क्लियर एंड अंडरस्टैंड देम व्हेन यू कम टू रिवाइज। 3 बार रिवीजन, उसके बाद नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग को जितना कंसाइज कर सको, जब तक एक रूल ऑफ थंब ले लेते हैं, नॉट बीइंग सो स्ट्रिक्ट। यस प्रतीक, आई डू दैट, ठीक है। मेक अ रूल ऑफ थंब कि जब तक आपके दिमाग में 70% चीजें बैठ नहीं गई, 60% नहीं बैठ गई, तब तक नोट्स मत बनाओ। इनिशियली आपके नोट्स शायद 150 पेजेस में होंगे, जैसा मैंने एवर नोट पे बताया ना, वो डिलीट करके इनिशियली वो नोट्स 150 पेजेस में हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी सेक्शन के, लेकिन धीरे धीरे वो नोट्स 100 पेजेस पे अपने आप आ जाएंगे अगर उसी को रिवाइज कर रहे हो, उसी को अपडेट कर रहे हो, उसी से ही बार बार रीड कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो चलते चले जाएगा, राइट। आदित्य, उनमें से मैं ये कहूंगा कि आंसर्स जब लिखोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ही इज आस्किंग जेवीज की जो पीडीएफ्स हैं, जो कोर जीएस सब्जेक्ट्स हैं, उनको डील कैसे करें, उनमें से समराइज करें। हम जो है वर्ड डॉक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, है ना, उस वर्ड डॉक में कंसाइज इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा तो है नहीं। डीएनए वाले में इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है, राइट। तो डीएनए में इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है, करंट अफेयर्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज पुट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। अब उसमें आप क्या करो कि ऑन एन एवरेज 3 पेजेस जो हैं, 3 A4 पेजेस, उसके नोट्स आपके 1 पेज में बन जाने चाहिए, यानी कि 6 साइड्स हैं उसकी, 6 के नोट्स 2 पेपर, एक A4 शीट पूरी में बन जाएंगे, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये चीज करोगे। मल्टीपल रीडिंग्स देन मेक नोट्स, यस, ठीक है। उसमें रीडिंग्स आपको कम लगेंगी क्योंकि आपने पहले से समझ रखा है, क्लियर। जो चीज पहले से अंडरस्टैंड करी है उसमें टाइम कम लगेगा, तो ये पैटर्न आप अपना सकते हो। रीड थ्रू टू मेक श्योर दैट दे आर क्लियर। फिर उसके बाद रूल ऑफ थंब जो मैं बता रहा था, 60% जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ गया तब तक नोट्स मत बनाओ। और फॉर्मेलिटी के लिए अब 3 रीडिंग्स मत करने लग जाना कि जतिन सर ने बोला था कि 3 रीडिंग्स करो फिर नोट्स बनाओ, तो चलो मेरे 3 बार 108 बार माला जप ली, अब भगवान मिल जाएंगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो जब तक चीजें अंदर दिमाग में नहीं बैठ जाती तब तक। दूसरा प्रतीक का जो क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट पुल इट आउट ऑन टेलीग्राम विद योर परमिशन। एक बार प्रतीक जो गलती कर रहे हैं मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूं तुम्हें। गलती नहीं है, मतलब मैंने भी ऐसा किया है, वो उसको गलती नहीं कहेंगे। अब अपना नाम देख के खुश मत हो जाना, ठीक है। देखो मैं आ गया। प्रतीक आपका नाम यहाँ पे 479 डला हुआ है। सी दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। लेट्स कीप आवर क्लासेस वेरी फ्रेंडली एंड फ्लूइडिक। तो इन्होंने क्या किया है, 1 मिनट और, ये जैसे न्यूज़पेपर में ही इज रीडिंग इट, राइट, दिख रहा है ना ये सबको। ये मैं जूम इन नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। शिफ्टिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देम। तो आई सजेस्टेड हिम कि आई मीन ही वाज डूइंग इट अर्लियर आल्सो। अब जैसे ये ग्राफ लगा दिया और फिर उसके नीचे नोट्स बना दिए, ठीक है। अब इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। दिस डज नॉट ऑफर हिम दी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। अब देखोगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
ये नीचे लिख दिया, फेयरली विजिबल है। अब इसमें जब इसको नोट्स को कंसाइज करना होगा, एक तो ये पेपर तंग करेगा, मुझे क्या करना है ये पेपर। ट्रस्ट मी, इन 2012-13 आई वाज डूइंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है, अच्छी चीज है। मेरे को आज भी हेडलाइंस याद है न्यूज़पेपर्स की। गॉड नोज आई वाज डिस्टाइंड टू बिकम अ न्यूज एनालिस्ट या कुछ भी, करंट अफेयर्स में काफी इंटरेस्ट था। तो जैसे मैं सीवीसी की जजमेंट के बारे में बोलूं, इट शुडंट बी ब्लेमिश्ड व्हाटसोएवर। तुम्हारी क्लासेस में भी कभी कभी सुषमा स्वराज मैडम याद आ जाती है ना, वो रूल 377 और ये सब। तो पॉइंट ये है, लैगिंग बिहाइंड, ये चीज हमारे काम की नहीं है। आपने क्रक्स डाल लिया, पेज पलटने का भी टाइम नहीं होगा अगर इतना ज्यादा स्पेस कंज्यूम करोगे। ठीक है, एसेंस निकाला, arguments in favor, arguments against, because we are preparing for an exam. Media should not target minorities. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो इसमें से एसेंस निकाला। ये सारी मैं अपनी नोटबुक्स दिखा सकता हूँ, 10-12 नोटबुक्स मैंने आईआर वगैरह की लगा दी थी, लेकिन फिर लगा कि ये चीजें रिवाइज, क्योंकि इसमें आपको लाइंस ढूंढनी पड़ेंगी बाद में। ये सब मत करना जो लोग कर रहे हो, ठीक है। इसमें लाइंस ढूंढनी पड़ेंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ क्या लिखा है, फैक्ट्स ही खो जाएंगे तो फायदा क्या ये सारा कुछ करने का। ये तो एल्बम बना दी द हिंदू की, है ना। हिंदू वाले तुमसे ले लेंगे इसको, बाद में पैसे भी अच्छे दे देंगे, क्योंकि जब वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बुक वगैरह करनी होती है। अ कंसर्टेड अटैक ऑन आरटीआई, अब ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें से हमने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करे। व्हाट इज न्यू इन इट फॉर मी, मेरे लिए नया क्या है। जो मेरे लिए नया है वो मैं अपने नोट्स में आरटीआई एक टॉपिक डालूंगा। नोटबुक भी होगी यहाँ पे, देखोगे आप, ये रही मेरी नोटबुक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैं यहाँ पे एक नोट डालूंगा आरटीआई, क्या क्या थीम्स मीडिया में चल रही हैं ये लिख सकता हूं, बिकॉज दीज आर माई नोट्स। ठीक है, नहीं आधा टाइम कट पेस्ट में लगता है, वो चलो दिक्कत नहीं है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है एक तो पहले इसका यूज करो। अगर फिर भी हार्ड कॉपी में या ऑफलाइन नोट्स आपको बनाने हैं नोटबुक में, ये सब अवॉइड करो, क्योंकि उसको ढूंढने में वो इतना माइक्रो टेक्स्ट है, 4.5 टेक्स्ट यूज करता है हिंदू, उसको ढूंढने में ही आपको टाइम लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो फिर वो आर्टिकल को भी ढूंढने में टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता था न्यूज़पेपर पढ़ना और ये सब, तो मैं उसको ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। फिर मेरे आर्टिकल कहाँ लिखा था, ये आर्टिकल कहाँ गया। इससे अच्छा तो ये है ना, मैं अपने सारे नोट्स आरटीआई का यहाँ पे एक नोट मैंने ऐड करा और चल रहा है कारवां। जैसे कि आप नोट ऐड करोगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपने इसको टाइटल दे दिया RTI, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट, इतने सारे टॉपिक्स तुम्हारे पास हो जाएंगे, 250-300, तुम्हें लगेगा आरटीआई क्यों पढ़ना है, लिख दो यहाँ पे 15 ईयर्स हो रहे हैं। और फिर रिपोर्ट आई थी, सीएजी की रिपोर्ट हुई थी, कंटेंट पेज बनता है ना जैसे एक बुक का, 4-5 कंटेंट पेज, 4-5 बड़ी बड़ी जो थीम्स हैं, जब आपको 4-5 महीने हो जाएंगे नोट्स बनाते हुए, तो आपके इस आरटीआई के नोट में कंटेंट्स क्या क्या हैं वो हो जाएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट थीम 15 ईयर्स टू आरटीआई, ये थीम चल रहा है, न्यूज में चल रहा है ना ये। सेकंड थीम क्या है, डिलेड अपॉइंटमेंट्स, डिलेड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। थर्ड, likewise you can do it. This is quite a congenial and hygiene way of making notes, technically speaking hygiene way, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। फिर 15 इयर्स में कितने पॉइंट्स हैं, what ails the functioning of RTI, at 15 RTI backlog is increasing, नॉन अपॉइंटमेंट की वजह से, ये सारी चीजें। फिर RTI अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ है, यहाँ पे एक और थीम आ जाएगा, RTI अमेंडमेंट बिल। क्लियर, दिस इज हाउ। अनिकेत, वन नोट या एवर नोट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है एक, और ये भी आता है, तो यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। इसमें क्लिपिंग्स आप जो डालोगे प्रतीक, वो क्लिपिंग सिर्फ वो वाली ऐड करनी है, जैसे कि मिसाइल का कुछ शो हो रहा है या कुछ ऐसा जो कि फटा माइंड मैप हो गए जेवीज के, वो डाल सकते हो। जो अगर उसमें लग रहा है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है तो माइंड मैप डाल देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, उनके माइंड मैप की अलग नोटबुक बना लो। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। और अगर कोई लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स आप में से हैं, डोंट गो फॉर ये मत करना, पीपल हु आर एट द सेम वेवलेंथ, वो अपने नोट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें शेयरिंग का ऑप्शन रहता है, शेयर्ड विद मी और ये सब। पॉइंट ये है
कि अगर आप नोट्स शेयर करते हो ना गाइज, उसमें आपके नोट्स नहीं हुए, वो दूसरे बंदे के नोट्स हो गए, ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस वो कवर कर रहा है, हिंदू आप कवर कर रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस में कोई नया पॉइंट आएगा तो वो उसमें ऐड कर देगा, आपको दिख जाएंगे। एसोसिएट विद समवन हु यू नो अबाउट, हु इज एट द सेम वेवलेंथ, 5-7 दिन बात करो, ठीक है। ये जरूरी भी रहता है क्योंकि इतने सारे सोर्सेज कवर करने हैं, डायमेंशंस हैं या कुछ, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, फिर वो बातें ज्यादा होने लग जाती हैं, फिर आप डाइग्रेस हो जाते हो इधर उधर की, फिर रिलेशनशिप भी हो जाता है, सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है। फिर ये बताओ कि मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, बातें फालतू की होने लग जाती हैं। इसीलिए हर्मिट बन के, संतवादी बन के अकेले बैठ के तैयारी करो, जो आनंद आएगा। याद करोगे जीवन के ये दिन कि हमने पढ़ाई करी थी, अच्छा लगा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आई वुड बी अ टीचर एंड आई वुड बी अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट या कुछ भी। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, इतना पता था कि मतलब माय मदर यूज्ड टू से कि कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्ञान कहीं नहीं जाता है ना। तो ये जो ज्ञान है, जो तब के ईयर्स थे 2012-13, ये सब हेल्प करते हैं। और विजडम, यू विल गेन विजडम, पढ़ के बातें करते हो तो यू फ्रिटर अवे योर एनर्जीज, योर सॉलिट्यूड गिव्स यू द एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट नोटबुक में और क्या क्या नोट्स हैं ये तुम देख लोगे, ईयू माइग्रेशन, ये जो मैंने बताया। तो ये चीजें अकेले बैठ के होती थी, ठीक है। कर लेते हैं बर्दाश्त हर दर्द इस आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद, राइट। सो विद दैट वी एंड आवर क्लास फॉर द डे। कौन क्या सोचता है ये सब मैटर नहीं करता, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम सही मार्ग पे चल रहे हो। यस, आईपैड पर नोटेबिलिटी पर बना लूंगा सर, डिजिटली एडिटोरियल्स इनकॉर्पोरेट करके। ओके, क्या डाउट है प्रिया का? इन अ डे हाउ टू डिवाइड टाइम फॉर करंट अफेयर्स? यस, हाउ टू मैनेज क्लासेस, लेट्स टेक अप दैट क्वेश्चन। हाउ टू मैनेज क्लासेस, देखो अब मैं ये कहता अच्छा नहीं लगूंगा कि सिर्फ क्लासेस ही करो, बट दैट इज द रियलिटी। अभी जब तक क्लासेस कर रहे हो तब तक क्लासेस इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हो तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी क्लास का कोई बैकलॉग नहीं है, मैंने क्लास के नोट्स 2-3 बार कवर कर लिया और क्लासेस में सब कुछ कवर हो ही जाना है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स की क्लास से आधा 1 घंटा पहले अगर नैप ले लेते हो, जो लोग 24/7 प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक अ नैप, आधे घंटे का पावर नैप, सो जाओ 1 घंटा, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू आर इनटू द क्लास, व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास, जो पॉइंट्स हैं उनको बेटर एब्जॉर्ब करो। जैसे ही वो क्लास ओवर हुई उसके बाद उसके नोट्स जैसे भी बनाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो। उसका एसेंस क्या था क्लास का वो सोचना शुरू कर दो। दिस विल टेक यू हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। दिस शुड आइडियली टेक यू नॉट मोर देन 1 आवर। डन। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास के बाद 1-1.5 घंटे का टाइम रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो भी करना है कंपाइल वाइल करे, आधे घंटे का टाइम फिर भी आपके पास बच जाएगा। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास अगेन। सुबह से पढ़ रहे हो, अगर 12:30 से 1:30 बजे तक सो भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 2 बजे तक सो जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:45 तक उठ जाना। फिर उसके बाद नोट्स बना लिए। अब अगली क्लास होगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी की क्लास में फिर भी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, फिर उसको पढ़ो, फिर वही रिवीजन, फिर पॉलिटी की क्लास। फिर सुबह जैसे होता है थोड़ी जल्दी उठ जाओ और 5-6 बजे 7 बजे, उसके बाद जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करो और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देख लिया, कुछ देख लिया। फिर ऑप्शनल का टाइम आपका मेन होता है सुबह का, ठीक है। अगर जो लोग जल्दी उठ पाते हो, ऑप्शनल स्टडी करना शुरू कर दो अपना, 3 घंटे 4 घंटे रोज ऑप्शनल को दो। उसके बाद जीएस के लिए क्लासेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में सैटरडे संडे तुम्हारे पास होता है, उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन और टेस्ट्स, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट, ये मैं सीधे सीधे बोलूंगा ज्वाइन कर लो। अर्निंग की बात मत करना कि मेरी अर्निंग हो रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। विद यू गाइज इट्स लाइक वी हैव टू स्पेंड 1000 रुपीज फॉर गेटिंग एवरी आंसर कॉपी करेक्टेड। सो यू कैन सी देयर how much would we be spending, because content writers यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो we also have to hire good people, तो उसमें चला जाता है, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स की मैगजीन और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ये सब आप अटेंड शुरू कर दो सैटरडे संडे को। एक टेस्ट पीटी का आप शुरू कर सकते हो, आप 19th के बाद ही आपके पीटी मास्टर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
ऑप्शनल के लिए सुबह का टाइम हम रखेंगे क्लासेस का, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आपकी दीपावली के बाद कभी भी 20th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी प्लेटफॉर्म पे jatinverma.org पे. मिस्टर अमन probably would be taking those classes. He has appeared in interview 2018-19, so he would be taking the पॉल साइंस क्लासेस. तो ये सुबह का टाइम आपका ऑप्शनल का है. करंट अफेयर्स आपने 1 घंटा 2 घंटे दे लिए, सारे टॉपिक्स धीरे धीरे से कवर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट देम. पॉलिटी इकोनॉमी अभी चल रहा है, इसके बाद सोशल इश्यूज आ जाएगा, ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, वो अपने आप रिदम में चीजें कवर होती जाएंगी. डोंट वरी के चलते ये सब स्पॉइल मत कर लेना. जो कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहो. आईपैड पर नोटेबिलिटी पर जो आपको कन्वीनियंट लगता है ये मत करते रहना, उसको जूम इन जूम आउट करते रह गए नोटेबिलिटी पे और ये सब करते रह गए. फैंसी चीजें ठीक हैं, है ना, वो उनके लिए है, प्रतीक एंड अदर्स. जो लोग ऑफिस में जॉब गोअर्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत हाईटेक हैं, जो पैदा ही आईपैड में हुए थे, मैं सीधे सीधे बोलूंगा, ठीक है, उनके पास वॉकर नहीं थी, वो आईपैड पे ही पैदा हुए थे, तो उनके लिए ठीक है, उनके पास है. अब अगर आप टेक्नोलॉजी पे इतना टाइम सीखने में लगाओगे कि बिल गेट्स के पास डिप्लोमा डिग्री करने जाना पड़े या स्टीव जॉब्स की आत्मा को रोज पुकारना पड़े, कोई फायदा नहीं है. राइट, आई हैव जगल्ड विद एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन. इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है. वरी मत करो गाइज. सुबह तुमने 2-3 घंटे ऑप्शनल को दे लिए, फिर तुमने 2 सब्जेक्ट रोज पढ़ लिए, फिर तुमने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए. अगर फिर भी ज्यादा टाइम बचता है ना, रिलैक्स्ड वे में मैं कह रहा हूँ डीएनए सुन लेना बस. सैटरडे संडे तुम्हारे पास करंट अफेयर्स के लिए है. गिव एवरी सैटरडे टू योर करंट अफेयर. एक सैटरडे में पॉलिटी का सेक्शन, एक सैटरडे में इकोनॉमी का, एक सैटरडे में बाकी रिमेनिंग जो सोशल इश्यूज निकाले हैं. 4 सैटरडेज तुम्हारे पास होंगे. करंट अफेयर्स की मैगजीन खत्म. 27 ऑफ एवरी मंथ तक आपका सारा मंथ का टारगेट जो भी बनाओगे पूरा हो जाना चाहिए. अलाइन योर टारगेट्स विद योर टेस्ट सीरीज फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स एंड द मेंस गाइडेंस वाला पार्ट. ठीक है, अगर कर रहे हो तो गुड है, नहीं तो यू कैन सीक फॉर दी अदर थिंग्स. ठीक है, जैसे भी करोगे. 27 के बाद 28, 29, 30 को जो पूरे मंथ में पढ़ा है उसके सिर्फ पेजेस भी पलट लिए ना, कोई नहीं रोक रहा तुम्हारा सिलेक्शन. डन. वही पढ़ो, बार बार वही पढ़ो, इतनी सी चीज है. वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर 2-3 घंटे ऑप्शनल कर लिया, टेक अ नैप 1 or 1.5 hours, जो कि जरूरी है करंट अफेयर्स क्लास से पहले. नैप ले लिया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर इको, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इस वरी के प्रोसेस में क्लासेस मत खराब कर लेना, बस मैं यही बोल रहा हूं. डन. सो दिस वॉज द मच नीडेड क्लास. फिर भी अगर किसी को ये लगता है आप में से आई हैव नॉट कवर्ड, आई हैव नॉट टच्ड अपॉन एनी अदर डायमेंशन, वी विल अगेन कंडक्ट 1 क्लास ऑन आंसर राइटिंग, जो कि ऐसी ही क्लास रहेगी इंसाइटफुल, after 15-20 days. If still you feel कि कोई डायमेंशन रह गया है, you're still encountering any problem in the course of your preparation, reach out to us. योजना के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैगजीन में कवर हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र के भी हो जाते हैं, पीआईबी वी आर कवरिंग, प्रीलिम्स किलर वगैरह जो मैंने मैगजीन के लिए टाइम बताया सैटरडे संडे, उसमें कवर हो जाएंगे. बोरिंग लगेगा मैगजीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैगजीन से कुछ आता. बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि मैगजीन से कुछ आता नहीं, करंट अफेयर्स, कन्वेंशनल करंट अफेयर्स से नहीं आ रहा, तो मैं आज लोकसभा टीवी चला लेता हूं. सबके साथ होता है, ठीक है. कभी कभी ना मेरे को चीजें डेलिबरेटली लेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि सर्च करना, जिसका मतलब मेरे को मेरे एक टीचर ने ताना मारा था, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू बी लाइक दिस, डोंट ऑफर पर्ल्स टू स्वेज. ठीक है, स्वेज क्या होता है इसका मतलब सर्च करना. तो देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. अभी इससे पहले यदि मैं बताता तो ये क्लास इतनी वर्थवाइल नहीं होती. राइट. वर्ड डॉक्स के लिए आदित्य अभी बोल देता हूं मैं. वर्ड डॉक्स अभी की क्लासेस के वर्ड डॉक्स आपको रेगुलर मिल रहे होंगे शायद, अगर नहीं मिल रहे तो आई विल डू दैट.
So this is there now. Thank you guys. Bye bye.